Hello students, how are you? I hope you all will be fine at your home. Students, your classes are suspended till 11th January 2025 due to extreme cold, bad weather. I am sending the explanation video of your English book chapter number 15, Sabor's Cub, of page number 121. Listen carefully, watch the video and understand the chapter. Then I will send you some questions related to this explanation. You have to answer it properly. So listen to my video and watch the video carefully. The third paragraph up to the second paragraph I have explained. Now the third paragraph. The cub had heard what its mother heard, and now he caught the smell of man, an unfamiliar smell, yet one he knew at once to be that of an enemy. As the adult moved quickly and stealthily into the underbrush, the small cub, ignoring her order, followed after her. The lioness, intent upon that which lay before her, did not know that he followed her. तो जो छोटा कब था, सेबोर लॉयनेस का जो छोटा कब था, जब उसकी मदर ने वो इंसानी गंध को महसूस किया था, तो वही सेम गंध वो लॉयनेस के कब ने भी फील किया। तो उसे भी ये फील हुआ कि कोई एनिमी वहाँ पर है। तो लॉयनेस तो अपने कब को गाइड करके चली गई, नॉट टू कम आउट ऑफ द केव से, गुफा से बाहर नहीं आना है। बट द स्मॉल कब, इग्नोरिंग हर ऑर्डर, जैसे ही वो लॉयनेस जल्दी से वो झाड़ियों के बीच गई देखने के लिए कि कौन उधर आसपास है, वो छोटा जो शेरनी का बच्चा था, उसने अपनी माँ के ऑर्डर को अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया और वो अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। लॉयनेस जो कि पहले ही निकल चुकी थी, उसको ये पता नहीं चला कि उसका जो कब है, स्मॉल बेबी, वो भी उसको फॉलो कर रहा है। नाउ दिस पैराग्राफ, listen carefully the pronunciation of all the words I am reading. There was dense jungle before the two for 100 yards, but through it the lions had made a tunnel-like path to their lair. And then there was a small clearing through which ran a well-worn jungle trail. As Sabor reached the clearing, she saw the object of her fear and hated well within it. What if the man-thing were not hunting her or hers? What if he had not even dreamed of their presence? These facts were as nothing to Sabor, the lioness, today. Ordinarily, she would have let him pass without being attacked, so long as he did not come close enough to threaten the safety of her cub or cubless. She would have slunk away at the first hint of his approach. But today the lioness was nervous and fearful because of the single cub that remained with her. So she did not wait for the man to threaten the safety of her little one. Instead, she moved to stop him. From the soft mother, she had become a terrifying creature of destruction. Her brain obsessed a single thought: to kill. In this paragraph, the writer is explaining about the thoughts coming into the lioness mind. इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो लॉयनेस जो शेरनी है उसके माइंड में जो उथल पुथल चल रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसके बारे में बताया है। वो लॉयनेस और उसके शेर के बच्चे के सामने
एक 100 यार्ड के बीच में डेंस जंगल था, 100 गज तक में घना जंगल था। लेकिन उन जंगलों के बीच में से, उन झाड़ियों के बीच में से वो शेरों ने एक रास्ता बना लिया था अपने गुफा में अंदर आने का। और फिर उसके बाद में बीच में थोड़ी जगह पर एक वृक्ष विहीन स्थान था जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, साफ था वहाँ पर। और फिर वहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता था। तो सेबोर उस रास्ते से होकर उस वृक्ष विहीन क्षेत्र पर पहुँची तो उसने वहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट को, उसी छाया को देखा जिससे कि वो डर रही थी। और वो वास्तव में एक इंसान की छाया थी, एक इंसान था। तो शेरनी सोच रही थी कि क्या वो इंसान जो है वो उनका शिकार करने नहीं आया है, या उसके बच्चों का शिकार करने नहीं आया है। क्या उसने को ये भी नहीं अंदाज है कि हाँ हम लोग यहाँ पर हैं, या वो ऐसे ही भटक रहा है वहाँ पर। ये सारे फैक्ट्स सेबोर के दिमाग में नहीं चल रहे थे। साधारणतः वो सिर्फ उस इंसान पर बिना आक्रमण किए उसे जाने देना चाहती थी, न ही वो उसको अपने और अपने बच्चे की तरफ आने देना चाहती थी। बिना अनदेखा किए हुए वो उस योद्धा को, उस इंसान को छोड़ देना चाहती थी। लेकिन आज वो बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। डरी हुई इसलिए थी क्योंकि उसका छोटा बच्चा उसके साथ था और उसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि वो जो इंसान है वो उसको धमकी दे, उसको ललकारे, उसको देखे या फिर उसके बच्चे को देखे। उसके बदले वो इस इंसान को सीधे रोकने की कोशिश के लिए आगे बढ़ गई और एक माँ के बदौलत, वो माँ के रूप में न जाकर वो बिल्कुल एक भयंकर जीव के रूप में अपने बच्चे के बचाव के लिए वहाँ पर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे उस इंसान को मारना है। इससे पहले कि वो इंसान उस पर या उसके बच्चे पर आक्रमण करे, वो बिना चेतावनी दिए उस इंसान को मार देना चाहती थी। She did not hesitate an instant at the edge of the clearing, nor did she give the slightest warning. The first warning that the warrior had that there was a lion within 20 miles of him was the devil-faced cat charging across the clearing toward him with the speed of an arrow. उसको थोड़ी भी झिझक नहीं हुई। वो वृक्ष विहीन क्षेत्र में पहुंचकर उस शेरनी को थोड़ी भी झिझक नहीं हुई और उसने किसी तरह की कोई दहाड़ नहीं दी। वो बिल्कुल पैर दबाकर चलती गई और उस वॉरियर को, योद्धा को, इस इंसान को सीधे दिखाई दिया कि 20 मील के गज के अंदर में वहाँ पर एक शेरनी उसको दिखाई दी और वो शेरनी सीधे उस वृक्ष विहीन क्षेत्र की तरफ से उस पर आक्रमण करने के लिए धनुष से छूटे हुए तीर की तरह भाग रही थी। Had the warrior known there was one near, he would have given it a wide berth. He would have fled now. यदि उस वॉरियर को, उस इंसान को ये पता होता कि वहाँ पर कोई शेर या शेरनी है, वो अपना बचाव कर लेता, उससे दूरी बना लेता या वहाँ से हट जाता, वो वहाँ से भाग जाता। Had there been anywhere to flee, यदि उसे पता होता कि वहाँ पर कोई शेरनी है तो वहाँ से भाग जाता। The nearest tree was farther from him than was the lioness. जो सबसे नज़दीकी पेड़ था वो भी उस शेरनी से बहुत दूरी पर था और शेरनी बिल्कुल उसके नज़दीक आ गई थी। There was no hope and there was only one thing to do. The beast was almost upon him and behind her he saw a tiny cub. बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई आशा नहीं थी उस इंसान के पास में। वो जो शेरनी थी बिल्कुल उसके नज़दीक आ गई थी, उस पर हमला करने वाली थी और उसके पीछे उसका छोटा सा बच्चा था। The man had a heavy spear. He carried it far back with his right hand and hurled it at the very instant that Sabor rose to seize him. उस इंसान के पास एक बहुत ही भारी लंबा भाला था
उसने उसको अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में सीधे पकड़कर, और जैसे ही सैबोर उस पर हमला करने के लिए उड़ी, उसने अपने भाले को, सीधे हाथ को भाला समेत सीधा किया और सैबोर पर दे मारा। The spear passed through the savage heart, and almost simultaneously the giant jaws closed upon the face and skull of the warrior. जैसे ही भाला उस शेरनी के हृदय को चीरते हुए निकला, उसी क्षण उस शेरनी के पंजों ने उस इंसान के चेहरे और उसके खोपड़ी को चीर दिया। The momentum of the lioness carried the two heavily to the ground. उस शेरनी का हमला इतना तेज था, इतना ज़ोरदार था कि दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। डेड एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू ट्विचिंग ऑफ देयर मसल्स, उनके कुछ मांसपेशियां ही हिलडुल रही थी। करीब करीब दोनों की मौत हो चुकी थी। तो ओके स्टूडेंट्स, इतने को आप बार बार इस वीडियो को वॉच करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगले पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में भेजती हूँ।